નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં ને? આજે આપણે ધોરણ 7માં હિન્દી ભણવાનું છે. આપણે સંસ્કૃત ભણ્યા પછી હવે આપણે શું ભણશું? હિન્દી. તો કે હિન્દીમાં આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાં પહેલો પાઠ, બીજો અને ત્રીજો પાઠ, આપણે 3 પાઠ સુધી પાઠ્યપુસ્તકમાં ચાલી ગયા છે. તો હવેથી આપણે સ્વાધ્યાય પોથી પૂરવાની છે. તો તમે બધાએ સ્વાધ્યાય પોથી લઈ લીધી હશે. તો અને જેણે સ્વાધ્યાય પોથી નથી લીધી એ અત્યારે રફ નોટમાં લખો અને પછી સ્વાધ્યાય પોથી લઈને અને એમાં પૂરી લેજો. હવે અહીંથી હું સ્વાધ્યાય પોથી પૂરાવું, તમારે એ સ્વાધ્યાય પોથીમાં સાથે સાથે લખતું જવાનું રહેશે. અહીંયા હું પ્રશ્નના જવાબ લખેલા પણ છે અને સાથે સાથે બોલતી પણ જાઉં છું, એટલે કે તમારે બધાને વ્યવસ્થિત લખાય. અને જે હું સ્વાધ્યાય પોથી પૂરાવું છું એ તમારા ક્લાસ ટીચરના વોટ્સઅપ નંબર ઉપર સેન્ડ પણ કરી દેવાની છે. હોમવર્ક પણ રેગ્યુલર થઈ જાય એટલે તમારે તમારા ક્લાસ ટીચરના વોટ્સઅપ નંબર ઉપર સેન્ડ કરવાનું રહેશે. તો કે હવે આપણે આજથી સ્વાધ્યાય પોથીમાં પહેલાં 1, 2 અને 3 પાઠ પૂરી લઈશું. તો હવે આપણે પહેલો પાઠ આજથી શરૂ કરવો છે ને, તો બધા સ્વાધ્યાય પોથી કાઢો અને બધું તમારે વસ્તુ એટલે કે કંપાસ લઈ લો. એમાંથી તમારે સાથે સાથે લખતું જવાનું છે અને અહીંથી હું જે લખાવું એ તમારે લખવાનું છે. ને અત્યારે સ્વાપોથી નથી, બધા રફ નોટ લઈને બેસશે. તો ચાલો હવે આજે આપણે પહેલો પાઠ પૂરીએ. तो आज है तमारा स्वाध्याय पोथीमानो पहलो पाठ के नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो जेम आपणे पाठ्यपुस्तक में पहलू चित्र आपेलू तो एवं पहलू चित्र है, पण थोड़ू अलग हशे, थोड़ू घणुं, बाकी पहलू चित्र एवं ज छे. तो चलो आपणे हवे एमां प्रश्न 1 टाइपो छे, एनी अंदर पेटा प्रश्न आपेला छे. आ शुं छे? प्रश्न 1 છે. એની અંદર આ જે આપેલા છે એ બધા એના પેટા પ્રશ્ન કહેવાય છે. તો કે इस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है. આપણે આ ચિત્રમાં જે ક્રિયાઓ થાય છે એટલે કે બધા માણસો શું શું કરી રહ્યા છે એ બધું આપણે લખવાનું છે. શું વસ્તુ છે, શું પ્રાણી, કયા પક્ષી છે, શું કરી રહ્યા છે આપણે લખવાનું રહેશે. તો ચાલો આપણે હવે પહેલું વાક્ય લખીએ. આ તમારું પહેલું વાક્ય છે. બધાને તમારે આવી રીતને આ લીટીની ઉપર અડાડીને પણ લખી શકો છો અને આવી રીતે પણ લખી શકો છો. તો પહેલામાં લખજો, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंचर से हवा भर रहा है. આ કોણ છે? તો કે સાયકલની દુકાનવાળો, જે આપણે પાઠમાં ભણ્યા હતા એ. साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से એટલે કે આ પંપ से हवा भर रहा है. તો તમે બધાએ સાથે સાથે લખતું જવાનું છે કે साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है. હવે આવે છે બીજું. હવે બીજામાં વાક્યમાં લખશું તો કે એક ગુબ્બારે વાલા. કોણ છે? ગુબ્બારે વાલા. गुब्बारे बेचने जा रहा है. गुब्बारे हवा में उड़ रहे. तो કે આ બધા ગુબ્બારા છે એ શું છે? હવામાં આવી રીતને ઉડે છે. તો હવે આપણે બીજું વાક્ય લખીએ કે एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है. एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है. गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है. गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं. આપણે અહીંયા બીજું વાક્ય છે એ પૂરું કર્યું. હવે આપણે ત્રીજું વાક્યમાં હું લખશું તો કે એક કુંજડી એટલે કે સબ્જી बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है. તો કે આ કોણ છે? તો કે સબ્જીવાળી. અને એની ટોકરીમાં શું છે? તો કે સબ્જી, શાકભાજી એને લઈને વેચવા જાય છે. તો ચાલો આપણે વાક્ય લખીએ તો કે એક કુંજડી એટલે સબ્જી बेचने वाली. આને આપણે શેમાં લખશું? કાઉન્સમાં. एक कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें यहाँ लखेलो છે છેલ્લો શબ્દ. શું લખેલો છે? एक कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही
है। फरी बार बोलूँ छूँ, एक कुंजड़ी सब्जी એટલે કે सब्जी बेचने वाले टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुंजड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। હવે આપણે પહોંચ્યા ચોથું, તો કે એક કૂતા રાસ્તે में लेटा हुआ है। આજે આપણે દેશ હોવી છે એમ કૂતરો એટલે કે હિન્દીમાં એને કૂતા કહેવાય। તો કે એક કૂતો છે એટલે કે એક કૂતા રાસ્તે में लेटा हुआ है, જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ। એક કૂતા રાસ્તે में लेटा हुआ है। જો ચાલો લખો બધા, એક કૂતા रास्ते में लेटा हुआ है। હવે પાંચમું વાક્ય લખશું, दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा है, જે આપણે અહીંયા જોવા મળે છે। તો કે दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा है। હવે પહોંચ્યા આપણે છઠ્ઠું, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। तो कि सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। પછી તો આઠમું વાક્ય લખી નાખ્યું બધાએ। હજે ફરી વાર બોલું છું, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। હવે આપણે આવ્યા પ્રશ્ન એટલે કે એમાં વાક્ય 7, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। बाइक के पीछे तो कि आनी पाछळ एक रिक्शा जाए छे, एमां एक यात्री बैठेलो छे। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। अहींया कयो शब्द छे? अहींया छेल्ले यात्री लखेलो छे कि रिक्शे में एक यात्री बैठा है। फरी बार बोलूँ छूँ, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। હવે આપણે આગળ જોઈએ તો કે रिक्शे के पीछे 2 कार है। જોઈએ છે रिक्शे के पीछे 2 कार है, જે આપણે આ ચિત્રમાં જોવા મળે છે કે રિક્ષાની પાછળ 2 કાર છે। હવે આગળ જોઈએ તો કે 9મું, જે તમે પહેલાં 8મું લખી લેજો કે रिक्शे के पीछे 2 कार है। रिक्शे के पीछे 2 कार है। હવે આપણે 9મું વાક્ય પહોંચ્યા, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। જે આપણે આમાં જોવા મળે છે કે સડક ઉપર એક મોચી બેઠો છે, એનો પોતાનો આ સામાન લઈને અને ગ્રાહકની વાટ જોવે છે। કોની વાટ જોવે છે? ગ્રાહકની વાટ જોવે છે। તો એ આપણે લખી લઈએ। હવે આપણે લખી લેવું છે ને, તો લખો, सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। तो हवे हूँ फरी वार बधा वाक्य बोली जाऊँ छूँ। पहलू वाक्य, साइकिल की दुकान वाला साइकिल की टायर में पंप से हवा भर रहा है। बीजू, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीजू, एक कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। चौथू, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। पांचवूं, दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा है। छठू, सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। सातवां वाक्य, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। હવે આગળ 8મું વાક્ય તો કે रिक्शे के पीछे 2 कार है। અને 9મું, सड़क पर एक मोची अपनी सामान के साथ
बैठा है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। तो હવે આપણે પ્રશ્ન 1ના પેટા પ્રશ્ન જોયા હતા, એમાં હવે આપણે પહોંચ્યા છીએ પ્રશ્ન 2 કે ગુब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो કે ફુગા છે હવામાં શું કામ ઉડે છે? તો તમને બધાને ખબર છે કે એમાં ગેસ ભરેલી હોય છે એટલે એ ઉડે છે। તો આપણને ખબર છે કે એમાં હવા ભરેલી એટલે કે એક પ્રકારનો એવો ગેસ હોય છે જેનાથી આમ હવામાં ઉડી શકે છે। આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે આ ગેસવાળા ફુગા છે, એની દોરી જો છૂટી જાય તો એ આકાશમાં ઊંચે ઉડી જાય છે। તો આપણે એનો જવાબ લખીશું કે ગુब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें क्या भरी हुई है? तो कि गैस, उनमें गैस भरी हुई है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है, क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। હવે આપણે પ્રશ્ન 3 વાંચીએ। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो કે ટાયરમાં હવા ક્યારે અને શું કામ ભરી જાય છે? તો એનો જવાબ છે કે जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या એટલે કે અહીંયા તમારે યા છે છેલ્લે લખેલો યા बिल्कुल नहीं रहती, या बिल्कुल नहीं रहती, तब इसमें हवा भरी जाती है, तब इसमें हवा भरी जाती है। फरी बार बोलूँ छूँ, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, या बिल्कुल नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है, तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब हवा भरने से આપણે અહીંયા પૂછાય તો કે ट्यूब हवा भरने से टायर कड़ा बन जाता है, એટલે કે ठोस कड़क। ट्यूब हवा भरने से टायर कड़ा हो जाता है, टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। ट्यूब हवा भरने से टायर कड़ा हो जाता है और टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चल सकती है, साइकिल से ठीक से चल सकती है। तो इसलिए ट्यूब में हवा और भरी जाए छे। तो हवे आपणे फरीवारी प्रश्न वाँची लईए। त्रीजो प्रश्न के ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो कि जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती, या बिल्कुल नहीं रहती, तब उसमें हवा भरी जाती है, तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है, टायर कड़ा એટલે ठोस, અહીંયા આપણે કાઉન્સમાં લખ્યું છે टायर कड़ा ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चल सकती है, साइकिल ठीक से चल सकती है। तो હવે આપણે પ્રશ્ન 4 પહોંચ્યા। तो प्रश्न 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया? तो कि चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया क्योंकि वह आराम कर रहा है। તમારે પહેલાં આ વાક્ય છે આટલું છે અહીંયા લખી નાખવાનું છે, અહીંયા ઉપરની લાઈનમાં પછીની અહીંયાથી લખવાનું છે કે चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया क्योंकि वह आराम कर रहा है, वह आराम कर रहा है। હવે આપણે પહોંચ્યા પ્રશ્ન 5, કુંજડી એટલે સબ્જી बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो તમને બધાને ખબર છે શાકભાજીવાળા ગલી ગલી ઘર ઘર जा सकते हैं। तो कि કુંજડી એટલે અહીંયા જો લખ્યું કુંજડી એટલે सब्जी बेचने वाली, सब्जियाँ बेचने के लिए
सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली में जा सकती है। कुंजड़ी, फरीवार बोलूँ छूँ, कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली में जा सकती है। घर घर और गली गली में जा सकती है। हमें प्रश्न 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो कि रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शा वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। आनी जगह तमे एम पण लखी शको छो कि क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरा कोई यात्री बैठाना नहीं था। अथवा आ जवाब से ये पण साचो छे अने आ तमने सरल पड़े छे एटले लख्यो कि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। हवे आपणे प्रश्नो 3 થી 2 થી फरीवार रिपीट करी लईए। तो कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो कि गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। पछी तो कि ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो कि जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब इसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा એટલે ठोस बनता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चल सकती है। प्रश्न 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया? तो कि चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर लेट गया क्योंकि वह आराम कर रहा है। पछी कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जाती है? तो कि कुंजड़ी सब्जी बेचने वाली सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। प्रश्न 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां मिली ही नहीं अथवा रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। तो आपणे प्रश्न 6 सुधी जोयुं। आ तमारे एक वार रफ नोटमां लखेला अने स्वाध्याय पोथीमां पूरेला बंने फोटा क्लास टीचरना वॉट्सएप नंबर पर सेन्ड करी देवाना रहेशे। आवता लेक्चरमां बधाए स्वाध्याय पोथी लई राखवानी छे। हवे आपणे आगळ स्वाध्याय पोथी पूरीशुं। त्यां सुधी आवजो। हवे मळीशुं आपणे आवता लेक्चरमां।